Organization Junagadh. महेंद्र भाई जीवानी, सेक्रेटरी एक्स सर्विस। आज ही के दिन 1971 भारत पाक युद्ध के हीरो फील्ड मार्शल SFJ मनेकशॉ ने सेना से अवकाश प्राप्त किया था। फील्ड मार्शल SFJ मनेकशॉ भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण फील्ड मार्शल KM करियप्पा अपनी शानदार सेवा के बाद सेना से अवकाश प्राप्त किया था। फील्ड मार्शल KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले सेनाध्यक्ष रहे। अपने प्रथम सेनाध्यक्ष के सेना में योगदान को याद करने के लिए आज के दिन को सभी अवकाश प्राप्त सैनिकों को समर्पित कर वेटरन्स डे के रूप में मनाया जाता है। We express our deepest gratitude for your service and salute your contribution to our nation's growth and prosperity. Now, I would like to request Mr. Arjun Singh Rathod to present the bouquet of flowers and school memento to Brigadier Neerav Kumar Raijada as token of respect. I request Mr. Sanjay Vai Vagasia sir to present the bouquet of flowers and school memento to R.K. Parmar, President ex-serviceman, Organization Junagadh. I request Mr. Hiren Bhai Vyas sir, Director, to present the bouquet of flowers and school memento to Mahendra Bhai Jivani, Secretary ex-serviceman, Organization Junagadh. Education Academic Officer to present the school memento and bouquet of flowers to Poonam Ben Bitia. Our honor to introduce our distinguished guest. Brigadier Neerav Kumar Rajada hails from a humble rural farming background. Resident of Keshod in Junagadh district, he is an alumni of Sainik School Balachadi, Jamnagar. Having cleared the UPSC exam in 1986, he joined and graduated from the prestigious National Defence Academy, Khadakwasla, Pune. He was commissioned into the Regiment of Artillery from Indian Military Academy in December 1990. As a third-generation officer carrying forward the legacy of serving the nation in uniform. He is qualified on Long Gunnery Staff Course at Devlali and the Defence Services Staff Course at Wellington besides the other mandatory professional courses with flying colours. A graduate from JNU New Delhi, he holds Master's degree in Weapon Technology from Pune University and also Master's degree in Defence Studies from Madras University. The officer has tenanted key command, staff and instructional assignments largely in strategic environments spanning 34 years in army and has served all over the country, from deserts of Rajasthan to jungles of Mizoram, from Siachen Glacier to the Run of Kutch, to name a few. He has been awarded Chief of Army Staff and Army Commander's Commendation Cards for distinguished service. His last posting was at Bhopal at President 22 Services Selection Board, SSB. He recently superannuated after 34 years of color service on 13 November 2024. Ms. Gayatri Raijada, Brigadier Neerav Kumar Raijada, belongs to Bhavnagar district. However, has been educated in Dharwar, Karnataka.
An arts graduate with a degree of B.Ed, she has worked for over 15 years in many schools, including international schools. Currently a homemaker and an animal enthusiast, she is pursuing Vedic astrology and gardening as hobbies. The couple is blessed with a son, Aradhe, who is third officer in Merchant Navy and is currently on sale. He is married to Dr. Simran, PhD in microbiology. कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने स्कूल का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। परम पूज्य श्री मुक्तानंद जी बापू के आशीर्वाद से श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल चापड़ा की स्थापना मई 2022 में हुई। स्कूल का उद्देश्य वर्तमान सैनिक स्कूल प्रणाली के तहत छात्र छात्राओं को कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान करके सैन्य सेवाओं में तथा देश की अन्य अग्रणी सेवाओं में अधिकारी पदों पर नियुक्ति के लिए तैयार करना है। हमारे स्कूल में कक्षा 6 की नियमित पढ़ाई 1 जुलाई 2022 को शुरू हो गई और वर्तमान में स्कूल में 17 राज्यों से आए 493 कैडेट्स, जिसमें 405 लड़के व 88 लड़कियां हैं, जो कि कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनके प्रशिक्षण में 13 राज्यों के शिक्षक व अनुदेशक काम कर रहे हैं। स्कूल का संचालन सैनिक स्कूल सोसाइटी सेना मुख्यालय के निर्देशों के तहत सैनिक स्कूल बालाचड़ी के मार्गदर्शन में होता है। मैं बड़ी विनम्रता से बताना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल अनेक बातों जैसे कैडेट्स की संख्या, खेलों में प्रदर्शन, आर्ट एंड क्राफ्ट व उपलब्ध संसाधनों की दृष्टि से नए सैनिक स्कूलों में प्रथम स्थान पर है। Our 400 cadets participated in Rangotsav celebrations and creations of 183 cadets won prizes and selected for international level of competition. I would like to request our chief guest, Brigadier Neerav Kumar Rajada, to motivate our fellow cadets who won laurels to the school by giving them prizes and trophies. Cadet Aditya Chandan Rai, he won trophy for cartoon making competition. Cadet Karan Arun Shah, he clinched trophy for handwriting competition. Cadet Prashant Bhanu Pratap Singh, he won trophy for cartoon making competition. Cadet Prince Sanjay Kumar, he won trophy for coloring making. Cadet Laisram Rodas won trophy for coloring making. Cadet Lucky Love Kushwaha won trophy for cartoon making. Cadet Himanshu Baluram Yadav won trophy for cartoon making.
Cadet Prince Ranjit Kumar won trophy for sketchmaking. Thank you, sir. अब मैं माननीय संजय भाई वगासिया जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। हरिओम। शौर्य वंदना कार्यक्रम में मंच पर विराजमान रायजादा साहेब, राठौड़ साहेब तथा उपस्थित मंच तथा अत्रे उपस्थित सौ पूर्व सैनिकों, एमना परिवार, ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूलनी पूरी टीम અને ઉપસ્થિત સૌ મહેમાનોનું બ્રહ્માનંદ વિદ્યાધામ વતી, શ્રી બ્રહ્માનંદ વિદ્યા મંદિર સૈનિક સ્કૂલ વતી હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કરું છું, સ્વાગત કરું છું। સાથે સાથે પૂજ્ય મુક્તાનંદજી બાપુ હાલ પ્રયાગરાજ કુંભમેળામાં હોય, અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ પૂર્વ સૈનિકોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવેલ છે અને વારંવાર આપ સંસ્થાની મુલાકાત લ્યો, અમારા કેડેટને એક પ્રેરણા આપો એવી બાપુની ઈચ્છા છે। અને આપ લાસ્ટ યર પણ આવા જ ઉત્સાહ સાથે અહીંયા આવેલા અને કેડેટ્સ આપની પાસેથી ઘણી બધી વસ્તુ શીખેલ। આ વખતે પણ આપનો ઉત્સાહ અનેરો છે। અમે એનો ગૌરવ અનુભવીએ છીએ કે આ સૈનિક સ્કૂલ માટે જો કોઈ આદર્શ હોય તો એ પૂર્વ સૈનિકો જ હોઈ શકે અને આપ બધા એકદમ ચાપડાની નજીક છો, એટલા માટે અમારા કેડેટ્સને પ્રેરણા પૂરી પાડશો। સાથે સાથે આ સંસ્થાની થોડી આપને આછેરી ઝલક આપવા માગું છું। આ સંસ્થામાં ટોટલ 4500 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે। કેજી થી પીજી સુધીના અભ્યાસક્રમ છે। 700 બાળકો માતા પિતાની ગેરહાજરીવાળાને ટ્રસ્ટ નિઃશુલ્ક અભ્યાસ કરાવે છે। તે ઉપરાંત મિઝોરમથી આવેલ 142થી વધારે બાળકોને પણ સંસ્થા નિઃશુલ્ક અભ્યાસ કરાવે છે। સાથે અંધશાળા, મનોદિવ્યાંગ બાળકોની સ્કૂલ, વૃદ્ધાશ્રમ, પશુ હોસ્પિટલ જેવા અનેક આયામો સંસ્થા ચલાવે છે। સાથે સાથે આજુબાજુના 100થી વધારે ગામ અને 50થી વધારે નેસને આ ટ્રસ્ટે દત્તક લઈ એમનું શિક્ષણ સુધારાનું મહાયજ્ઞનું કાર્ય પણ આ સંસ્થા કરે છે। સાથે સાથે આ વર્ષે સંસ્થા નવી મેડિકલ કોલેજ પણ આ વિસ્તાર માટે આપવા જઈ રહી છે। સાથે અમારા અધ્યક્ષ શ્રી રાઠોડ સાહેબનું એવું સૂચન છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ 10મા ને 12મા ધોરણમાં જે ફેલ થાય છે એ વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્કિલ બેઝ એજ્યુકેશનના કોર્સ પણ સંસ્થા ચલાવવાની છે। સાથે સાથે અંબાડા ખાતે એક પક્ષી અભયારણ્ય, 4 જગ્યાએ વૃદ્ધાશ્રમ જેવી અનેક સુવિધાઓ સંસ્થા દ્વારા બહાર પડે છે અને આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અમે ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ। જય હિન્દ। अब मैं माननीय महेंद्र भी जीवानी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री ब्रिगेडियर रायजादा साहेब, राठौड़ साहेब, वगासिया साहेब, व्यास साहेब तथा मंचस्थ मेहमानों તેમજ મારા પ્રિય એક્સ સર્વિસમેન્સ મિત્રો, આજે આમ તો આપણે 2017થી જ એક્સ સર્વિસમેન ડે મનાવવાનું ચાલુ ઓલ ઇન્ડિયામાં થયું છે, પણ આજે મારા ખ્યાલથી લગભગ પૂરા ગુજરાતમાં એની પહેલ બ્રહ્માનંદ સૈનિક સ્કૂલ ચાપડાએ કરી છે અને એ આપણા માટે ઘણી ખુશીની વાત છે અને ગર્વની વાત પણ છે। મિત્રો, જ્યારે આપણે સર્વિસ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે અમુક વસ્તુઓ આપણે ડ્યુટી કરતા હોય છે, 100% ડ્યુટી કરતા હોય છે, એમાં થતી હોય છે એ આપને ખબર નથી હોતી। પણ મિત્રો, એટલું યાદ રાખજો કે આપણે લોકોએ જે ડ્યુટી કરી છે એને લીધે આપણા સરહદ ઉપર કોઈ, આપણી દેશ ઉપર કોઈ આંખ નથી ચીંધી શકતું। એ માત્ર ને માત્ર આપણે બધા અત્યારે જે સર્વિસમાં છે એ અને આવનારો વર્ગ એના ખાતે જ જાય છે। ત્યાર પછી
આ જે મહાકુંભ મેળો ભરાય છે, શાંતિપૂર્વક આવા મોટા મોટા આયોજનો દેશમાં થાય છે, એ માત્ર અને માત્ર સૈનિકોને આધીન જ છે, જેને લીધે એ લોકોને ચિંતા નથી કે અમારા આયોજનમાં કોઈ પણ ખલેલ પડશે. ત્યાર પછી સામાન્ય વ્યક્તિ પણ સાંજે આરામથી સૂઈ શકે છે. આપણે જોઈ છીએ ઘણા દેશોની અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે, એ માત્ર ને માત્ર આપણે આધીન છે. મિત્રો, આપણે ઘણી મુશ્કેલીઓ હોય છે. અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ સિવિલમાં નાના નાના કેટલા પ્રશ્નો હોય છે. આ પ્રશ્નો આપણી સાથે નહોતા હતા જ, તેમ છતાં પણ આપણે લોકોએ ડ્યુટીમાં કોઈ પણ પ્રકારની બેદરકારી નથી કરી. ડ્યુટીમાં હંમેશા આપણે સતત સારી રીતે રહીએ છીએ. મિત્રો, આપણા એક શાયરે એવું કેવું પડ્યું છે આ જોઈને કે 0 ડિગ્રીથી નીચે તાપમાન હોય અને 50 ડિગ્રીથી ઉપર તાપમાન હોય તો સાયન્સ એવું કહે છે કે ત્યાં માણસ ના રહી શકે. જો 0 ડિગ્રી તાપમાન એનાથી નીચે હોય તો માણસની ચામડી, માણસના હાડકાં ગળી જાય, અને 52-55 ડિગ્રીથી ઉપરનું તાપમાન હોય તો માણસ બળી જાય. છતાં પણ આપણે બધાએ ત્યાં ડ્યુટી કરી છે. આમ જોઈએ તો શાયરને એવું કેવું પડ્યું છે કે તમારે ક્યાં ફરિશ્તા જોવા જવાનું છે? ફરિશ્તા તો આ જ છે જે આ પરિસ્થિતિમાં રહી શકે છે. સાયન્સ જે સ્વીકારતી નથી કરે છે. મિત્રો, આ વસ્તુ કે આપણું સન્માન થાય એવી આપણી ઈચ્છા નથી હોતી. આપણે લોકો દેશ માટે કામ કરીએ છીએ, જે કરીએ છીએ કોઈ એવી લેવાની ભાવનાથી નથી કરતા, પરંતુ આ લોકોના જે સ્વભાવ, અને અમે હમણાં મળ્યા હતા ત્યારે આપણે શ્રી વ્યાસ સાહેબ સાથે પણ અમે વાત કરી હતી, એ લોકોની જે લાગણી છે, અને લાગણી સાથે આપણા સન્માનથી નવી પેઢીને કાંઈક પ્રેરણા મળે, સમાજમાં કાંઈક નવી વસ્તુ આવે, નવું જોવે. સાહેબે વાત કરી હતી કે આપણા દેશમાં હજી થોડું પાછળ છે. બીજા દેશમાં સૈનિકોના સન્માન માટે, પૂર્વ સૈનિકો એના માટે હર વર્ષે સ્પેશિયલ ઓકેશન, સ્પેશિયલ સેલિબ્રેશન થાય છે, અને હોવું જોઈએ. આપણા માટે નથી, હું એમ નથી કહેતો કે આપને સન્માન આપે, પણ આ સન્માનથી નવી પેઢી પ્રેરિત થાય, સમાજ પ્રેરિત થાય. તો આ તકે આપણે જ્યાં પૂજ્ય મુક્તાનંદ બાપુના સાનિધ્યમાં બેઠા છીએ, ભલે બાપુ અહીંયા નથી પણ એના આશીર્વાદ તો આપણી સાથે છે જ, ત્યારે હું આપણા સર્વે માજી સૈનિક વતી આ સૈનિક સ્કૂલને આભાર માનું છું. કારણ કે આ સન્માન પૂરા ગુજરાતમાં, કદાચ એવું પણ હશે કે પૂરા ઇન્ડિયામાં આ શરૂઆત થઈ છે. 2017થી શરૂઆત થઈ ગઈ છે, સરકાર તરફથી થઈ ગઈ છે, પણ કોઈએ હજી પહેલ નથી કરી. પહેલ આપણી અહીંથી થઈ છે. એ બદલ હું ફરીથી આભાર માનું છું. મારું વક્તવ્ય અહીં પૂરું કરું છું. થેન્ક યુ. જય હિન્દ. ભારત માતા કી જય. अब मैं माननीय R.K. परमार जी से अनुरोध करती हूँ। व्यास साहेब, वघासिया साहेब, હું જુનાગઢ જિલ્લા માજી સૈનિક સંગઠન પ્રમુખ. હું આર્મડ કોરમાં 18 વર્ષ નોકરી કરી, અને ત્યારે તો વિજેતા ટેન્ક હતી. જોકે મારા સાથી ભાઈને બધાને ખબર હોય, એટલે હું નવા બાળકોને એ કહું છું કે તમે એક સારા ઓફિસર બનજો. અને આમાં ગુજરાતના તો મેં પૂછ્યું ને વ્યાસ સાહેબને, તો એમાંથી લગભગ 30-40 છોકરા છે. બધા બિહારના વધારે છે, હિમાચલના વધારે છે, બીજાના, પણ આપણે ગુજરાતી વધારે જવો જોઈએ. એનો આપણી વચ્ચે બ્રિગેડિયર સાહેબ, જો અમે તો 19 વર્ષથી રિટાયર્ડ થઈ ગયા છે, મોટા મોટા અધિકારીનો અમે સ્વાગત કર્યું હોય ને તો નીરવ સાહેબ છે, એના સિવાય અમારા હોનરી કેપ્ટન ઘણા આવ્યા છે, પણ એટલી મોટી રેન્કના પહેલા સાહેબ આવ્યા હતા. એટલે અમારા જુનાગઢનું અને આખા ગુજરાતનું ગૌરવ એવા અમારા સાહેબ અત્યારે વચારે છે. એટલે હું બાળકોને એવું કહું છું, અને જે વાલી આવ્યા છે, એક્સમેન છે, વીર નારી છે, વધારે આપણા છોકરાઓને સૈનિક બનાવે એવું હું ઈચ્છું છું. અને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે આ 2 દિવસનો ટાઈમમાં એટલા બધા આપણે સૈનિકો અહીંયા ચાપડા દૂર છે તોય પણ આવ્યા, સંગઠનનું માન રાખી. અને હું અગેન્સ્ટ ચાપડા સ્કૂલને પણ
ધન્યવાદ કહું છું કે પાછલા વર્ષે આપણે એને 50 થી 70 આપણે એક્સમેન આવ્યા હતા. આ જ વખતે આપણા પરિવારને બોલાવ્યા છે, એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું સ્કૂલનો. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. थैंक यू सर. अब मैं माननीय अर्जुन सिंह राठौर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य शब्दों से हमें अनुग्रहित करें. हरिओम. ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल आयोजित शौर्य बंदना कार्यक्रम में उपस्थित ब्रिगेडियर रायजादा साहेब, सैनिक स्कूलना डिरेक्टर संजय भाई वगासिया, हिरेन भाई व्यास, परमार भाई, महेंद्र भाई, पूनम बेन, पूर्व सैनिक मित्रों, विद्यार्थी भाईओ बहनों और सैनिक स्कूलनो स्टाफ, खूब आनंदी बात है कि गुजरातना आंगणे हमणां ज बात करी एमां पहल करी एवो प्रसंग है कि माजी सैनिकों ने याद करी एक साथे बोलावी ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल में एमनो सन्माननो कार्यक्रम राख्यो, एक मेळावड़ो राख्यो. परम पूज्य मुक्तानंद बापू खूब दूरंदेशी है, लांबी दृष्टिथी जोवावाळा है. अत्यारे भले कुंभ में बैठा सूक्ष्म रूपे अहींया हाजर ज छे, आपणी साथे सौनी वच्चे छे, एमने तमामे तमाम वस्तुनी खबर होय छे. ब्रह्मानंद विद्याधाम आ संस्थानो 23 वर्षनो आ विकास है. परम पूज्य बापू पासे कांई ज नहोतुं एम कहीए तो चाले, नीचे पथारी करीने सूता हता. ए परिस्थितिमांथी आजे 23 वर्षमां आटलो विकास ए आपणी कल्पना बहारनी वात छे. अवारनवार हूँ सभाओमां कहेतो होउं छुं तो मुक्तानंद बापू एक कल्पवृक्ष है. ये कल्पना करे अने थई जाए. आवा विस्तारमां आवड़ी मोटी स्कूलों होय, 8-8 कॉलेजो होय, हॉस्पिटल होय, सैनिक स्कूल आवी जाए अने अत्यारे मेडिकल कॉलेज आवी रही छे. आ कई रीते शक्य बने? आप सौने पण हूँ विनंती करूँ छूँ कि अनुकूलताए पूज्य बापूनी हाजरी होय तो एक वखत दर्शने आवजो, मुलाकात करजो. तमने सौने खबर पड़शे कि आ संत कई प्रकारनो छे. एमने दुनियादारीनो बीजो कोई रस नहीं, समाज सेवामां ज रस छे. અને એ પણ મંદિરોમાં કે એમાં નહીં, જીવતા ભગવાનની સેવા કરવામાં. એમનું સૂત્ર છે પીડિતોને રાહત આપો, પડેલાને ઊભા કરો, ઊભેલાને ગતિ આપો અને ગતિવાનને સાચી દિશા આપો. અવારનવાર સભાઓમાં અને અમને બધાને કહેતા હોય છે દરેકે દરેકને કે તમે અથાગ પરિશ્રમ કરો, વધુ કલાક કામ કરો. કામ કરવાથી કોઈ દુબળો પડી જતો નથી અથવા નબળો પડી જતો નથી. કામ કરવાથી જ રિઝલ્ટ મળે છે. અને એમનું એમાંય પણ એ સૂત્ર છે કે સફળતા એ તમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. તમે પ્રયત્ન કરશો, વારંવાર એમાં લાગેલા રહેશો, જરૂર સફળ થશો. આ પ્રસંગે પૂર્વ સૈનિકો સંજયભાઈએ જે આયોજન કર્યું એ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છે. અમારા સૈનિક સ્કૂલના કેડેટ્સને ને તમામને કંઈક એક પ્રોત્સાહન મળશે, એમને પણ કંઈક પ્રેરણા મળશે. આપ સૌએ હિન્દુસ્તાનની રક્ષા માટે જે કામ કર્યું છે એ खूब खूब अभिनंदन पात्र तो है ज, पण साथे साथे आ नवा युवानो जे तैयार थया छे ए पण एमांथी प्रेरणा मेळवी अने हिंदुस्ताननी रक्षा माटे जोड़ाय एवुं एमनो जोम, जुस्सो अने जनून वधे. आ ट्रेनिंग ए प्रकारनी छे के माणसमां मानसिक अने शारीरिक बंने रीते एमनी मजबूताई आवती होय छे. एनो आत्मविश्वास खीलतो होय छे. जे माणसमां आत्मविश्वास न होय, पोतानी जात पर भरोसो होय, ये सफल न थई सके. माणसे आत्मविश्वास खीलवવો खूब जरूरी है. आ संस्थामां तमामे तमाम विभागना युवानो, विद्यार्थीओ, बाळकोने आ प्रकारनुं ज्ञान आपवामां आवे छे. संस्कार साथेनुं शिक्षण आपवामां आवे छे. अहींया आ बधी वस्तु तो खरी, पण साथे साथे एमनी तंदुरस्तीनो, एमनो भविष्यनो पण विचार करीने अने काम करवामां आवे छे. आप सौने वारंवार अभिनंदन तो आपू छूँ. अपना आप प्रसंगना अध्यक्ष रायजादा साहेब आपणे त्यां आव्या, एक ब्रिगेडियरना होद्दा परथी रिटायर थया अने एमने आ मोको मळ्यो अने आपना सन्मान कार्यक्रममां आपना ज वडा अधिकारीने जे चांस आपवामां आव्यो छे खरेखर खूब प्रशंसनीय छे. संजयभाई वगासिया, हिरेनभाई, एमना आखो स्टाफ એટલી હદે મહેનત કરી રહ્યો છે કે આ વિસ્તારમાં બાલાછડીના
સૈનિક સ્કૂલના સુપરવિઝનમાં જે કામ કરી રહી છે એની નોંધ હિન્દુસ્તાન લેવલે લેવાઈ રહી છે. આપણે હમણાં સંજયભાઈ ઘણી લાંબી બધી ચર્ચાઓ કરી કે બાપુની પ્રવૃત્તિઓની, એ સિવાયની પણ મંદબુદ્ધિના બાળકોની સ્કૂલ પણ અહીંયા છે, અંધ બાળકોની સ્કૂલ પણ અહીંયા છે, 4 જગ્યાએ વૃદ્ધાશ્રમો, ગૌશાળા અમારી બહુ મોટી છે. 800 લીટર દૂધ રોજનું થાય છે અને વેપાર કરવામાં નથી આવતો, અહીંયા વપરાય છે. દહીં, દૂધ, છાશ, ઘી તમામ વસ્તુ અહીંયા ઉપલબ્ધ હોય છે. આ પરિસ્થિતિના વાતાવરણમાં જે આ કેડેટ્સ પણ તૈયાર થશે એ ખરેખર ખૂબ જુસ્સાવાળા, જનૂની અને સદભાવ સાથે તૈયાર થઈ અને દેશની રક્ષામાં અથવા તો સમાજની રક્ષામાં ક્યાંય પણ જે ક્ષેત્રમાં જાય ત્યાં બહુ સારી રીતે કામ કરશે. હમણાં જ વાત કરી આપણે પરમારભાઈએ કે જે વફાદારીની, ઈમાનદારી એ આ વિભાગમાં જ વધુ પડતી જોવા મળે આપણને. જે જવાબદારીપૂર્વક કામ કરી શકતા હોય છે, વફાદારીથી કામ કરી શકતા હોય છે અને એમાં ઈમાનદારી પણ હોય છે. સમય આવે એ પોતાને જાનની બાજી લગાવીને પણ બીજાની મદદરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. આ સંજોગોમાં આ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ આનંદ અનુભવીએ છીએ. બ્રહ્માનંદ સંસ્થા વતી અને પૂજ્ય બાપુ વતી દરેકને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. અવારનવાર અમારા ફંક્શનો થાય ત્યારે આપને બોલાવવામાં આવે ત્યારે અને વગર બોલાવે પણ આ સંસ્થાની મુલાકાત લ્યો અને અમને પ્રોત્સાહન આપો, એવી અમારી શુભકામના સાથે આપ સૌને શુભેચ્છાઓ. હરિઓમ. Dhanyavad, sir. Now I request our chief guest, Brigadier Neerav Kumar Raijada, for his inspirational words to guide us for our better future. જય હિન્દ એન્ડ હરિઓમ. મને લાગ્યું કે આ બધાના સંબોધનમાં હરિઓમ બોલે છે એટલે એક અહીંની ટ્રેડિશન હશે અને મારે પણ એ ટ્રેડિશન સાચવવી જોઈએ. હરિઓમ. મંચ પર બિરાજમાન અર્જુનસિંહ સાહેબ, વ્યાસ સાહેબ, બગાસિયા સાહેબ, આર.કે. પરમાર, મહેન્દ્રભાઈ, પૂનમબેન, અહીંયા આવેલા બધા જ ભૂતપૂર્વ સૈનિકો, એમના ફેમિલીઝ, વાલીઓ અને મારા પ્રિય કેડેટ્સ ઓફ સૈનિક સ્કૂલ છાપડા. હું ઇંગ્લિશમાં બોલું કે ગુજરાતીમાં બોલું? ઓલ કેડેટ્સ इंग्लिश. अच्छा चलो हिंदी में. जब किसी से चॉइस पूछते हैं ना तो वो सरप्राइज कर देते हैं. तो चलो ना गुजराती ना इंग्लिश, हिंदी में शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले तो ये मेरा सिंगुलर ऑनर है कि आज मैं इस समारोह में उपस्थित हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पैमाने के ऊपर आज ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है. ये देख के मेरे को बड़ी खुशी हो रही है और वो भी एक सर्विसमैन के लिए, उनके सम्मान के लिए. वेटरन्स डे के ऊपर सभी एक सर्विसमैन को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन. और उससे भी ज़्यादा अभिनंदन उनके फैमिलीज को जिनका योगदान इनसे भी ज़्यादा है. और वो इसलिए है क्योंकि ये जब आगे जाते थे तो उनका परिवार संभालना, उनकी बच्चों की शिक्षा, उनका पालन, ये सब कुछ उनके परिवारों ने किया है जो हम अनदेखा कर देते हैं मोस्टली. तो उनका भी बड़ा बड़ा योगदान है. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन. ब्रह्मानंद एजुकेशन ट्रस्ट और खास करके सैनिक स्कूल छपड़ा की तरफ से आज जो ये आयोजन किया गया है, मैं सभी एक सर्विसमैन की तरफ से, सीनियर्स होने के नाते उन सभी की तरफ से जो अहदेदार हैं और बापू के जो आशीर्वाद से ये आयोजन हुआ है उनके लिए बहुत आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ कि आपने इतना बड़ा एक आयोजन किया, हम सबको सम्मानित किया और
मेरा मानना है कि ये कम्युनिटी है जो पूरे देश में फैली हुई है। पूरे इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में तकरीबन कोई ना कोई एक सर्विसमैन होता है। और वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एक बार सैनिक हमेशा के लिए सैनिक, ये मेरी धारणा है, मेरा मानना है। क्योंकि उसका जो डिसिप्लिन है, उसका सोच विचार है, नेशन, फैमिली, उसके प्रति जो वफादारी है वो बरकरार रहती है मरते दम तक। तो इसको सम्मानित करने के लिए जो ये आयोजन किया, मैं सैनिक स्कूल चापोड़ा और पूरे ब्रह्मानंद एजुकेशन ट्रस्ट के सभी होद्देदारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आभारी। थैंक यू वेरी मच। That was a very nice way of clapping. Once again. Very good. NCC way of doing things. बाकी तो मैं कैडेट्स, मेरे को बताया कि यहाँ 500 से तकरीबन 493 कैडेट्स हैं और ऑल ओवर इंडिया 17 स्टेट से आए हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं खुद एक सैनिक स्कूल का विद्यार्थी रह चुका हूँ आज से 45 साल पहले। और आज जब मैं इतनी सुंदर परेड का आयोजन जो किया गया था और उसको देख रहा था, तो मेरे जहन में जो कैडेट स्कूल कैप्टन के तौर पे कमांड, कभी मैं उस स्थान के ऊपर खड़े होकर वर्ड ऑफ कमांड दिया करता था, वो सारी यादें ताज़ा हो गई मेरे दिमाग में। तो ये सब यादगार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा परेड का आयोजन किया, बहुत अच्छा वर्ड ऑफ कमांड था, बहुत सिंक्रोनाइजेशन अच्छा था और जो एक तरीके से परेड होनी चाहिए उस तरीके की परेड थी। कोई उसमें नुक्स निकालने के लिए था ही नहीं। तो मेरी जितने भी कैडेट्स ने उसमें पार्ट लिया है, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। वेरी वेल डन। जीवन में सब, अभी खाली मैं कैडेट्स के लिए बात कर रहा हूं। आप बहुत यंग हैं, 6, 7, 8, जस्ट अबाउट आपके जीवन की शुरुआत हो रही है। संघर्ष बहुत आएंगे, लेकिन बिना संघर्ष के जीवन होता ही नहीं है। जो संघर्ष से नहीं गुजरा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक संघर्ष, हर एक कठिनाई, हर एक आपत्ति के साथ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और जिसने ये कुछ नहीं सीखा है तो वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं है। सैनिक स्कूल का मेरा ये मानना है पर्सनली कि सैनिक स्कूल का स्टूडेंट जीवन में कभी फेल तो हो ही नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि वो गिरता है और उठता है, गिरता है और उठता है। आदमी तब फेल होता है जब गिर जाता है और खड़ा नहीं होता है। खड़ा होकर आगे बढ़ने वाला आदमी कभी फेल नहीं हो सकता। और ये एक बेसिक क्वालिटी हर एक सैनिक स्कूल के कैडेट में होती है। जीवन में सक्सेस होने के लिए फैमिली से दूर जाके जो सीखने को मिलता है वो ये शुरुआत है। तो आपने ऑलरेडी पहला कदम उठा चुके हो, आगे ऐसे ही मेहनत करो और आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य रखो। सैनिक स्कूल में है तो नेचुरली आप सबका लक्ष्य होना चाहिए कहां? वंस अगेन एनडीए। गुड, सबको एनडीए में जाना है। आप यूपीएससी पास कराओ, एसएसबी मैं पास कराऊंगा। तो ये सबके लिए एक लक्ष्य होना चाहिए और ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। आपके सामने एक गांव का लड़का आज यहाँ स्टेज के ऊपर ब्रिगेडियर के तौर पे खड़ा है, ये शक्य है। मैं भी आप लोग जो स्टेप से गुजरे हो, जो जर्नी से गुजर रहे हैं, उसी जर्नी से निकला हुआ हूं। तो मेरा 100% ये मानना है कि अगर एक आप गोल सेट करते हैं और उसके लिए
कमिटमेंट दर्शाते हैं तो कोई टास्क अनअचीवेबल नहीं है। जीवन में सक्सेस के लिए दो चीजों की बड़ी जरूरत है। एक है गोल सेटिंग। आपने अगर तय कर लिया कि मेरे को इंडिया में जाना ही जाना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड आप उसके लिए कमिटमेंट जैसा है। कमिटमेंट क्या होता है? दो चीजों से आता है, एक डेडिकेशन और एक हार्डवर्क। जो मेहनत करता है उसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, आप बनोगे ही बनोगे। आफ्टर ऑल हम में जो यहाँ बैठे हैं उसमें और जो ओलंपियन है, जो एवरेस्ट चढ़ता है, वो सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। सबके पास दो हाथ और दो पांव हैं, लेकिन वो उतना ऊपर और हम यहाँ ऐसे क्यों हैं? क्योंकि शायद हमने गोल सेटिंग नहीं करी, उसके लिए मेहनत नहीं करी, उसके लिए कमिटमेंट नहीं जताया। तो अगर कोई हम चीज तय कर लेते हैं और उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं तो कोई चीज इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। ये आपके दिमाग में बिठा लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, आप जरूर बनेंगे एंड इंडिया में जाएंगे। अंत में मैं यहाँ बैठे कैडेट्स, सारे फैकल्टी मेंबर्स और सबका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ, और आप सबकी बढ़ोतरी के लिए, गुड हेल्थ के लिए और आगे बढ़ने की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और इस एक प्रार्थना के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये जो पूरी एक संकुल की एक्टिविटीज हैं, जैसे अभी अर्जुन सिंह साहब ने कहा, नई नई चीजें बन रही हैं, कुछ ऑलरेडी चल रही हैं। इसमें मैं और मेरे साथी एक्स सर्विसमैन हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकें, उसके लिए कुछ भी अंदर मदद रूप हो सके, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात होगी। तो हमें ऐसा मौका मिले जिससे कि हम इसमें अपनी तरफ से कुछ डालें और इसको और बढ़ावा मिले, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। With that, thank you very much. Wish you all the very best. God bless you all. Thank you so much, sir, for your inspirational words. I would like और उससे भी ज्यादा अभिनंदन उनके फैमिलीज को, जिनका योगदान इनसे भी ज्यादा है। और वो इसलिए है क्योंकि ये जब आगे जाते थे तो उनका परिवार संभालना, उनकी बच्चों की शिक्षा, उनका पालन, ये सब कुछ उनके परिवारों ने किया है, जो हम अनदेखा कर देते हैं मोस्टली। तो उनका भी बड़ा बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। ब्रह्मानंद एजुकेशन ट्रस्ट और खास करके सैनिक स्कूल चपड़ा की तरफ से आज जो ये आयोजन किया गया है, मैं सभी एक्स सर्विसमैन की तरफ से, सीनियर मोस्ट होने के नाते उन सभी की तरफ से जो अहदेदार हैं और बापू के जो आशीर्वाद से ये आयोजन हुआ है, उनके लिए बहुत आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ कि आपने इतना बड़ा एक आयोजन किया, हम सबको सम्मानित किया। और मेरा मानना है कि ये कम्युनिटी है जो पूरे देश में फैली हुई है। पूरे इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में तकरीबन कोई ना कोई एक सर्विसमैन होता है। और वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एक बार सैनिक हमेशा के लिए सैनिक, ये मेरी धारणा है, मेरा मानना है। क्योंकि उसका जो डिसिप्लिन है, उसका सोच विचार है, नेशन, फैमिली, उसके प्रति जो वफादारी है वो बरकरार रहती है मरते दम तक। तो इसको सम्मानित करने के लिए जो ये आयोजन किया, मैं सैनिक स्कूल चापड़ा और पूरे ब्रह्मानंद एजुकेशन ट्रस्ट के सभी अहदेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आभारी। थैंक यू वेरी मच।
That was a very nice way of clapping. Once again. Very good. NCC way of doing things. बाकी तो मैं कैडेट्स, मेरे को बताया कि यहाँ 500 से तकरीबन 493 कैडेट्स हैं और ऑल ओवर इंडिया 70 स्टेट से आए हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं खुद एक सैनिक स्कूल का विद्यार्थी रह चुका हूँ आज से 45 साल पहले। और आज जब मैं इतनी सुंदर परेड का आयोजन जो किया गया था और उसको देख रहा था, तो मेरे जहन में जो कैडेट स्कूल कैप्टन के तौर पे कमांड दे, कभी मैं उस स्थान के ऊपर खड़े होकर वर्ड ऑफ कमांड दिया करता था, वो सारी यादें ताज़ा हो गई मेरे दिमाग में। तो ये सब यादगार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा परेड का आयोजन किया, बहुत अच्छा वर्ड ऑफ कमांड था, बहुत सिंक्रोनाइजेशन अच्छा था और जो एक तरीके से परेड होनी चाहिए उस तरीके की परेड थी। कोई उसमें नुक्स निकालने के लिए था ही नहीं। तो मेरी जितने भी कैडेट्स ने उसमें पार्ट लिया है सबको बहुत बहुत अभिनंदन। वेरी वेल डन। जीवन में सब, अभी खाली मैं कैडेट्स के लिए बात कर रहा हूं। आप बहुत यंग हैं, 6, 7, 8, जस्ट अबाउट आपके जीवन की शुरुआत हो रही है। संघर्ष बहुत आएंगे, लेकिन बिना संघर्ष के जीवन होता ही नहीं है। जो संघर्ष से नहीं गुजरा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक संघर्ष, हर एक कठिनाई, हर एक आपत्ति के साथ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और जिसने ये कुछ नहीं सीखा है तो वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसने कुछ सीखा ही नहीं है। सैनिक स्कूल का मेरा ये मानना है पर्सनली कि सैनिक स्कूल का स्टूडेंट जीवन में कभी फेल तो हो ही नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि वो गिरता है और उठता है, गिरता है और उठता है। आदमी तब फेल होता है जब गिर जाता है और खड़ा नहीं होता है। खड़ा होकर आगे बढ़ने वाला आदमी कभी फेल नहीं हो सकता। और ये एक बेसिक क्वालिटी हर एक सैनिक स्कूल के कैडेट में होती है। जीवन में सक्सेस होने के लिए फैमिली से दूर जाके जो सीखने को मिलता है वो ये शुरुआत है। तो आपने ऑलरेडी पहला कदम उठा चुके हो। आगे ऐसे ही मेहनत करो और आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य रखो। सैनिक स्कूल में है तो नेचुरली आप सबका लक्ष्य होना चाहिए कहां? वंस अगेन एनडीए। गुड। सबको एनडीए में जाना है। आप यूपीएससी पास कराओ, एसएसबी मैं पास कराऊंगा। तो ये सबके लिए एक लक्ष्य होना चाहिए और ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। आपके सामने एक गांव का लड़का आज यहाँ स्टेज के ऊपर ब्रिगेडियर के तौर पे खड़ा है, ये शक्य है। मैं भी आप लोग जो स्टेप से गुजरे हो, जो जर्नी से गुजर रहे हैं, उसी जर्नी से निकला हुआ हूं। तो मेरा 100% ये मानना है कि अगर एक आप गोल सेट करते हैं और उसके लिए कमिटमेंट दर्शाते हैं तो कोई टास्क अनअचीवेबल नहीं है। जीवन में सक्सेस के लिए दो चीजों की बड़ी जरूरत है। एक है गोल सेटिंग। आपने अगर तय कर लिया कि मेरे को एनडीए में जाना ही जाना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड आप उसके लिए कमिटमेंट दर्शाएं। कमिटमेंट क्या होता है? दो चीजों से आता है, एक डेडिकेशन और एक हार्डवर्क। जो मेहनत करता है उसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, आप बनोगे ही बनोगे। आफ्टर ऑल हम में जो यहाँ बैठे हैं उसमें, और जो ओलंपियन है, जो एवरेस्ट चढ़ता है, वो सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। सबके पास दो हाथ और दो पांव हैं।
लेकिन वो उतना ऊपर और हम यहाँ ऐसे क्यों हैं? क्योंकि शायद हमने गोल सेटिंग नहीं करी, उसके लिए मेहनत नहीं करी, उसके लिए कमिटमेंट नहीं जताया। तो अगर कोई हम चीज तय कर लेते हैं और उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं तो कोई चीज इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। ये आपके दिमाग में बिठा लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, आप जरूर बनेंगे, एंड इंडिया में जाएंगे। अंत में मैं यहाँ बैठे कैडेट्स, सारे फैकल्टी मेंबर्स और सबका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ, और आप सबकी बढ़ोतरी के लिए, गुड हेल्थ के लिए और आगे बढ़ने की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और इस एक प्रार्थना के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये जो पूरी एक संकुल की एक्टिविटीज हैं, जैसे अभी अर्जुन सिंह साहब ने कहा, नई नई चीजें बन रही हैं, कुछ ऑलरेडी चल रही हैं। इसमें मैं और मेरे साथी एक्स सर्विसमैन हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकें, उसके लिए कुछ भी अंदर मदद रूप हो सके, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात होगी। तो हमें ऐसा मौका मिले जिससे कि हम इसमें अपनी तरफ से कुछ डालें और इसको और बढ़ावा मिले, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। With that, thank you very much. Wish you all the very best. God bless you all. Thank you so much, sir, for your inspirational words. I would like gratitude to all dignitaries present here for making the time with us. We are very much thankful to our chief guest for his inspirational words. I, as a cadet of Sri Mamaland Vidya Mandir Sainik School Chapada, assure you to not leave any stone unturned to make you proud. Your expertise and valuable guidance are instrumental in helping us identifying areas for improvement and strive for greater heights. Thank you once again to everyone who has made this event possible. Thank you one and all. Now, I request you all to please stand up and join me for Jaykara. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Vande! 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 Thank you. Jai Hind. ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने हट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने हट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत
वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है। खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है। एक जान है एक प्राण है सारा देश हमारा, नदियां जल कर थकी रुकी पर कभी न गंगा धारा। एक जान है एक प्राण है सारा देश हमारा, नदियां जल कर थकी रुकी पर कभी न गंगा धारा। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा।